श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी ली है। वो हमारा गुजरात का गौरव, भारत की शान और विश्व की बेटी है। तो हम इस पाठ को आगे अभ्यास करेंगे। जून 1958 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आराम में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं जून 1998 में सुनीता ने नासा માટે ચયનિત किया गया, એટલે પસંદ કરવામાં આવી। એની ઈચ્છા હતી કે મારે ક્યાં જવું છે, અંતરિક્ષ યાત્રીમાં મારે શિક્ષણ લેવું છે। અને એ નાસા માટે કોની પસંદગી કરવામાં આવી તો કે સુનીતા વિલિયમ્સની। ઓગસ્ટ 1998 એમણે નાસામાં પ્રશિક્ષણ શરૂ કરી દીધું। એને તાલીમ શરૂ કરી દીધી। સખત પ્રશિક્ષણ પછી સુનીતા પોતે અંતરિક્ષ યાત્રી માટે તૈયાર થઈ ગઈ। સુનીતા કહે છે કે અંતરિક્ષ સ્પેસ સ્ટેશનમાં જિંદગી સરળ નથી। તો કે અંતરિક્ષમાં જવું કંઈ સરળ નથી, ત્યાં પણ ઘણી કઠિનાઈઓ છે અને આપણે પાર કરીને આપણે આપણી ઈચ્છાઓ, આપણી કલ્પનાઓ આપણે પૂરી કરવી હોય છે। ખાવાથી લઈ નાહવા સુધી બધું જ કઠિન છે। તો કે ત્યાં જમવા માટે, નાહવા માટે બધી વસ્તુ મુશ્કેલ ભરી છે। પાછા ફરવામાં મુશ્કેલી થાય છે। આપણે જ્યારે અંતરિક્ષ યાત્રા પૂરી થાય અને પાછા ફરીએ ત્યારે પણ ત્યાં ખૂબ જ મુશ્કેલી થાય છે। આરામ બાદ ચાલવા ફરવા બધામાં તકલીફ થાય છે। શરૂઆતમાં આરામમાં એટલે કે શરૂઆતમાં આપણે ચાલવામાં ફરવામાં બધે જ ખૂબ જ તકલીફો થતી હોય છે। હડિયા કમજોર હો જાતી હે। પછી શું કીધું? હડિયા એટલે આપણા શરીરના જે હાડકાઓ છે એ કેવા થઈ જાય છે? કમજોર થઈ જાય છે। દિમાગ તૈયાર હોને में समय लगता है। મગજ તૈયાર થવામાં સમય લાગે છે। શેના માટે? કે આપણે જે શિક્ષણ મેળવવા ગયા છે એમાં જે કઠિનાઈ છે એને પાર કરીને આપણે અંતરિક્ષ પરી બનવાનું છે। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। तो कि मगज तैयार थवामां समय लागे छे। सुनीताए पोतानी जातने खुद એટલે પોતાની જાતને અંતરિક્ષ પ્રશિક્ષણ લઈ તૈયાર કરી। પોતે પોતાની જાતે આ શિક્ષણ મેળવી અને નાસામાં જવા માટે તૈયારી કરવા લાગી। વૈજ્ઞાનિક तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी। तो क्या सुनीता पोतानी जातने अंतरिक्ष प्रशिक्षण लई तैयार करी। पोताने वैज्ञानिक तकनीक थी भरपूर व्याख्यान, रशिया में रहीने अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा एमना यान वगैरह जानकारी प्राप्त करी। गोताखोरी में भारहीनताथी थनार अनुभवनी स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा में संदर्भ में खूब सारी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों विषे जाणी। અને પહેલાં બધું જાણકારી મેળવી લીધી કે ત્યાં જઈએ તો કેટલો વજન લઈ જવો, આપણે હાડકાઓને ખૂબ મુશ્કેલી થાય નાહવા ધોવાની, હાલવા ચાલવામાં। તો આ બધું એને શિક્ષણ પહેલાં મેળવી લીધું। તે અંતરિક્ષની સંભવિત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા પૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ચૂકી હતી। એને ખબર છે કે અંતરિક્ષમાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ થશે, તો એનો સામનો કરવા માટે પોતે તૈયાર છે એવું એને શિક્ષણ મેળવી લીધું। એ માટે એ તૈયાર થઈ ચૂકી હતી। સુનીતા પૂરી તૈયારી માટે 9 દિવસ માટે પાણીની અંદર પણ રહી। એમનું પ્રશિક્ષણ પૂરું થવાના આશરે 8 વર્ષ लाग्या। तो आप देख सकते हैं वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी है। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो क्या एने पोताने अंतरिक्ष जवा माटे કેટલા દિવસ સુધી પાણીમાં રહી? 9 દિવસ સુધી। કારણ કે ત્યાં બધી મુશ્કેલીઓ છે એનો સામનો કઈ રીતે કરવો। અને પોતે આ પ્રશિક્ષણ ખત્મ હોને में करीब 8 साल लगे।
એને આ પ્રશિક્ષણ તાલીમ મેળવી કેટલા વર્ષો થયા? 8 વર્ષ લાગ્યા. તો 8 વર્ષની કડી મહેનત પછી અંતરિક્ષ યાત્રી બની. તમે જોયું તો કે કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે મહેનત કરો તો તમને જરૂર અને જરૂર सफलता મળે જ છે. आगे आप देख सकते हैं डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडा स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. तो તમે જો ફ્લોરિડા ડિસ્કવરી અભિયાન કેનેડા સ્પેસ સેન્ટરથી ફ્લાઇટ એન્જિનિયર તરીકે ડિસ્કવરી મિશનમાં દાખલ થયા પછી 10 ડિસેમ્બર 2007 एटलांटिक्स अंतरिक्ष यान सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. तो कि सुनीताए 17 डिसेम्बर अंतरिक्ष में प्रथम कदम मूक्यो એટલે પગ મૂક્યો. 17 डिसेम्बरे अंतरिक्ष में प्रथम कदम मूक्यो. कोने? तो कि सुनीता विलियम्स में. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. तो कि पृथ्वी थी 360 किलोमीटर थी दूर पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति कलाके 27,744 किलोमीटर थी. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.60 चक्कर काटता था. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2009 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. तो आप देख सकते हैं कि आ स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वीना 15.60 चक्कर कापतो હતો. अर्थात सुनीताए पृथ्वी में 2967 चक्कर पोताना अंतरिक्ष प्रवास में लगाव्या हता. इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. तो तमे जोयुं के एने आ अभियान में शू कर्युं? तो 29 कलाक अने 17 मिनिट सुधी स्पेस वॉक करी अंतरिक्षनो रेकॉर्ड बनाव्यो. तो आ रेकॉर्ड अत्यार सुधी कोईए नहोतो बनाव्यो. कोणे बनाव्यो? सुनीता विलियम्से. इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी. तो कि आ पहला एने शू कर्युं? एप्रिल महीना में 4 कलाक में 24 मिनिट में मैराथन जीतवा वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई. सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे में शैनन ल्यूजिक का रिकॉर्ड तोड़ा. तो कि मैराथन जीती અને પહેલી અંતરિક્ષ યાત્રી બની. અંતરિક્ષમાં બોસ્ટન મેરેથોનમાં 4.5 કલાકમાં 42 કિલોમીટરનું અંતર કાપવાવાળી તે પ્રથમ અંતરિક્ષ યાત્રી બની. સુનીતાએ અંતરિક્ષ યાત્રી બનીને અંતરિક્ષમાં 128 દિવસ અને 4 કલાકનો શેનોન લ્યુઝિકનો રેકોર્ડ તોડ્યો. આપેલા જે આ વ્યક્તિ હતો એનો રેકોર્ડ કોને તોડ્યો? તો કે सुनीता विलियम्स से. सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि. अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी. तो कीधुं के त्यां केवी मुश्केली पड़े. तो कि सुनीता विलियम्स ने 6 महीना રહેવાનો અનુભવ કહે છે. તે અંતરિક્ષમાં કેટલા સમય સુધી રહી હતી? તો કે 6 મહિના સુધી તે અંતરિક્ષમાં ત્યાં રહી હતી. પોતાનો અનુભવ કહે છે કે ત્યાં વ્યાયામ કરવો ખૂબ જ આવશ્યક છે જેથી માંસપેશીઓ અને હાડકાંની શક્તિ જળવાઈ રહે, શરીરને લચીલું રાખી શકાય, જેમ કે સાયકલ ચલાવવી, દોડવું, હવામાં તરવું વગેરે. અંતરિક્ષ યાત્રામાં સૂઈ જવું મુશ્કેલ છે. રોજ ડબ્બાબંધ ભોજન, ભારહીનતા, શરીરનું લચીલાપણું, तीव्र गति थी खलास थवुं, मांसपेशीओ अने हाडकानी खूब ज नबळाई जेवी समस्याओं होय छे. तो के आ बधी समस्याओं क्या आपने नड़े? तो के ज्यां ए अंतरिक्ष में गई त्यां तेने आ बधी मुश्केलीओ अनुभव कर्यो. केटला समय रही? 6 महीना सुधी. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन
संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। तो कि तेने ત્યાં જઈને કયું કામ કર્યું? તો કે સુનિતાએ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં 6 મહિનાના પ્રવાસ દરમિયાન ઘણા મહત્ત્વના કાર્યો કર્યા, જેમ કે હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ, ફિઝિકલ સાયન્સ, પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ, શિક્ષા અને ટેકનોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન જેવા વિષયો પર કામ કર્યું. તે સિવાય સુનિતાએ આ દરમિયાન જમા કરેલા લોહીના નમૂના, ન્યુટ્રિશન સાથે સંબંધિત અનુસંધાન કરી રહેલા વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચાડ્યું ને આ કાર્ય પણ ત્યાં જઈને કર્યું. सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. તો તેને ત્યાં જઈને એને અનુભવ કર્યો કે સુનિતા કહે છે, અહીં સૌથી મોટી વાત મને એ લાગી કે આપણી પૃથ્વી કેટલી શાનદાર છે. દુનિયાને અલગ નજરથી જોવાની તક અને પોતાના ગ્રહને આવવાવાળી પેઢીઓ માટે કેવી રીતે બચાવવી એ અંતર્દૃષ્ટિ મળે છે. અંતરિક્ષ ભેગા મળીને કામ કરવાની ખૂબ જ સુંદર જગ્યા છે. અહીં આવતા એવું લાગે છે કે આપણે પૃથ્વી પર કેવી વિવાદોમાં ફસાયેલા રહીએ છીએ. આપણે શા માટે પૃથ્વી ઉપર ઉલઝન એટલે ખોટા વિવાદોમાં पड़ी रही है. કેટલું સુંદર ત્યાંનું વાતાવરણ છે. नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता. यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदानों और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है. यह दृश्य बहुत मनोहर था. तो एने कीधुं के त्यां एने केवुं वातावरण बताव्युं. तो कि अंतरिक्ष यात्री જ્યારે ભારત પરથી પસાર થયું ત્યારે નવી દિલ્હીના અમેરિકન સેન્ટરમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં સવાલોમાં જવાબ આપતી સુનિતા કહે છે, અહીંથી વિશ્વ સીમાઓમાં વેચાયેલું નથી દેખાતું. અહીં તો ફક્ત દેખાય છે આપણો સુંદર ગ્રહ, સુંદર ગ્રામીણ વિસ્તાર, સુંદર પહાડ અને આસમાની રંગનો સુંદર મહાસાગર, લીલા મેદાન અને અનેક રંગોની જમીન દેખાઈ રહી છે. આ દ્રશ્ય ખૂબ જ મનોહર હતું, એટલે મનને મોહિત કરી દે તેવું દ્રશ્ય હતું. જ્યારે દિલ્હીથી કોન્ફરન્સ દ્વારા એને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે એને જવાબ આપ્યો કે ત્યાંથી આપણી પૃથ્વી પરનું બધું જે વાતાવરણ છે વિશ્વ કેવું લાગતું હતું. તો કે આપણે બધું જુદા જુદા ભાગ પડે પણ ઉપરથી જોતા ત્યાં આવું કાંઈ દેખાતું નથી, ભાગલા દેખાતા નથી. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा. तो क्या 19 जून 2007 रोज स्पेस शटल एटलांटिक सुनीता साथे 7 अंतरिक्ष यात्रीओने लई धरती तरफ रवाना थयुं. आखुं विश्व सुनीता कुशल पाछा फरे ते माटे प्रार्थना करी रह्युं हतुं. 194 दिवस 18 कलाक અને 58 મિનિટ अंतरिक्ष यात्रामां वितावीने रेकॉर्ड बनावनार सुनीता 22 जून 2007 रोज पाછી આવી. સુનિતાના આશ્ચર્યજનક કાર્યથી ભારતીય અને ગુજરાતીઓનું માથું ઊંચું થયું. શા માટે? તો કે ગુજરાત અને ભારતનું ગૌરવ હતું. આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો નારી સર્વોચ્ચ સ્થાન પર બેસાડી હોય તો સુનિતાની જેમ સાહસી અને મહત્વાકાંક્ષી બનવું પડે. તો કે નારીએ ઊંચા સ્થાન પર બેઠવું છે તો એના માટે એની પાસે શું હોવું જોઈએ? તો કે સાહસી એટલે એનામાં હિંમત હોવી જોઈએ. મહત્વાકાંક્ષી બનવું પડે એટલે એની જે ઈચ્છાઓ છે મહત્ત્વની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે એને કઠિન મહેનત કરવી પડે છે. એને અંતરિક્ષમાં કેટલી તકલીફો વેઠી છે એ પહેલાં એને તમે જોયું કે કેટલા સમય સુધી એને 9 દિવસ સુધી તે પાણીમાં રહી. પછી પ્રશિક્ષણ ક્યારે ખતમ થયું? એનું 8 વર્ષ લાગ્યા ત્યારે અંતરિક્ષ યાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સ બની. તો સપના જોવાથી આપણા કાર્યો સફળ નથી થતા. જે આપણે લક્ષ્ય લીધું છે તેની પાછળ આપણે મહેનત કરવી પડે છે તો જ તે આપણે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચીએ છીએ. જો સુનિતા વિલિયમ્સ આપણો ભારતનું ગૌરવ, આપણી ગુજરાતનું ગૌરવ હોય તો આપણે પણ એક ગુજરાતી અને એક ભારતીય છીએ. તો આપણે પણ આવું સાહસ કરી દેશ અને નામ
આપણા સમાજ અને રાજ્યનું નામ રોશન કરી શકીએ છીએ। હવે મિત્રો आप તમે जो पात्रों का परिचय दीजिए। तो पहला इंदिरा गांधी है। पहले तस्वीर किसकी है? इंदिरा गांधी। तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1970 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे साल 1966 के से 1977 तक लगातार भारत की प्रधानमंत्री रही। तो वो कौन है? हमारी प्रधानमंत्री। दूसरा आप देख सकते हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई के एक खेल पत्रकार इमरान मिर्जा और माता नसीमा के यहाँ हुआ था। उसकी परवरिश हैदराबाद में हुई थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में टेनिस खेलने की शुरुआत की थी। 2009 में सानिया मिर्जा ने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की। 2004 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। सानिया मिर्जा भारत की अब तक की सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किरण बेदी। डॉक्टर बेदी का जन्म सन 1949 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। वे श्रीमती प्रेमलता तथा श्री प्रकाश लाल पेशावरिया की 4 पुत्रियों में से दूसरी पुत्री है। डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। उन्हें वर्ष 2002 के लिए भारत की सबसे प्रशिक्षित महिला चुना गया। द ट्रिब्यून पाठक ने उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में पसंद की गई है। मल्लिका साराभाई। चौथी तस्वीर मल्लिका साराभाई का जन्म 9 मई 1954 में हुआ है। वे एक मशहूर कुचिपुड़ी और भारतनाट्य नर्तकी, अभिनेत्री, निर्देशक और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मल्लिका नर्तक मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी है। तो विद्यार्थी मित्र आपने विक्रम साराभाई के पाठ कक्षा 7 में पढ़ा है। उन्होंने सिनेमा से अपने फिल्म जीवन की शुरुआत की है और पीटरब्रुक के नाटक महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई। मल्लिका दर्पण अकादमी ऑफ आर्ट्स अहमदाबाद की निर्देशिका भी है। 5वीं तस्वीर कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा, भारत में 1 जुलाई 1961 को एक हिंदू भारतीय परिवार में हुआ था। जहांगीर रत्नजी टाटा से उन्हें उड़ान में दिलचस्पी उत्पन्न हुई। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैज्ञानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह एक भारतीय अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। कल्पना मार्च 1955 में नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्हें 1958 में पहली उड़ान के लिए चुना गया था। उन्हें 1998 में पहली उड़ान के लिए चुना गया था। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों में से एक थी। छेली तस्वीर आप देख सकते हैं पीटी उषा। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के प्योली गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम पेतला था। वे आमतौर पर पीटी उषा के नाम से जानी जाती है। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी मानी जाती है। 1976 में केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक खेल विद्यालय खोला और उषा को अपने जिले का प्रतिनिधि चुना गया। 400 मीटर बाधा दौड़ का सेमीफाइनल जीतकर वे किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला और 5वीं भारतीय बनी। तो आप भी उसके बारे में और भी जान सकते हैं।